Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind, and we are really very much doing hard work for you all so that no student should leave behind, right? That means कि भाई हम लोग किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, and that's why we have started this video lectures for you all so that you can prepare for school examinations as well as for your Olympiad level education, right? So that means if you study from these lectures you can definitely crack both of the examinations. ठीक है, आप जो है स्कूल एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर पाएंगे, साथ ही साथ आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने आपके जो ओलंपियाड्स होते हैं है ना, वो उन सभी एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे। और राइट, और हम लोग का ये टारगेट रहता है दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू द वेरी मच गुड लेवल, जहाँ तक भी आप ओलंपियाड्स लेवल को लेकर जा सकते हैं, right? So that's what we have aimed for, and that's why we have created these video lectures which is free for everyone can see that, so do share with them all, right? जितने भी बच्चों से हो सके do share them, ताकि वो भी अपने goals को क्रैक कर सके, वो भी स्टडी कर सके बहुत अच्छे तरीके से, and that will be a helping hand from you all, right? So that is that important, ताकि सभी बच्चे जो हैं इनसे लर्न कर सके और अपने एग्जाम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्रैक कर सके। ऑलराइट, इफ़ यू वांट एनी स्टडी मटेरियल और डीपीपी यू कैन डेफिनेटली एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। ऑल you need to do is to write this code TTB06, all right, and on the Telegram app, and you can then join us. You can access all the DPPs and study material. Next thing I want to tell you is that कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग easily जो है हम लोगों से जुड़ सकते हैं, all right, and this is the thing कि भाई ये जो हमारी टीम है, this is doing very much hard work for you all so that you all can achieve the targets or anything you have achieved for yourself, any goal you have achieved for yourself, right? In that context कि हम आपको help कर सके, आपको guide कर सके, आपकी preparations में आपकी help कर सके पूरे process में, we have prepared some packages for you, and that is what you can get from our website. All right, you can definitely access them, these things. Alright, you can see www.talkingtextbooks.in. You should go on this website, and when you will be going on that website, you will be getting such type of packages over there. Alright, तो हमने दो तरीके के पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं। एक पैकेज उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी जिनको गाइड नहीं मिल पा रहा है, जिनको एक यू कैन से एक मेंटर नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों के लिए, राइट, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो भी पूरा प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो है डील कर सके। क्योंकि इस पूरे फुल पैकेज के अंदर यू विल बी getting the study material, comprehensive study material, you will be getting the recorded or live classes, alright, you will be getting bi-weekly quizzes, that means you will be tested twice a week, alright, and you will be getting homework submission feature ताकि आप homework करें और submit करें, alright, and then you will be getting periodic test papers ताकि क्या हो कि आप easily जो है फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके से आता है उसका एक छोटा सा आप देख सके, पहले से एक पैटर्न पता कर सके, वो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। सो दैट इज़ द फर्स्ट पैकेज जो कि पूरा फुल पैकेज है और आपको पूरा प्रोसेस गाइडेड बिल्कुल यू कैन से कि भाई एक पूरा प्रॉपर मैनर में आपको इससे प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। बट इफ़ यू स्टडीड ऑल द थिंग्स, मीन्स आपने हो सकता है कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया हो, बट यू वॉन्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज, ऑलराइट, एंड इन दिस टेस्ट सीरीज यू विल बी गेटिंग पीरियोडिक test papers, you will be getting recorded or live classes, and you will be getting the bi-weekly quizzes, all right. So that depends on you कि आपको किस तरीके की मदद चाहिए, and we will be there for you, all right. So that means we will be helping you in every scenario, right. And you can definitely know that कि अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए इन दोनों ही पैकेजेस पे, so you can get that, and for that you have to write the code CY live, alright, you have to write this code. If you write this code, then you will be getting 30% discount on any of the package you choose from the talkingtextbooks.in. Alright, even if you have any query regarding the cost of the packages or the feature of the packages, you can definitely call us on this number, alright, and all your queries will be resolved. And this was it, and this was the important thing I wanted to tell you all, that कोई भी बच्चा किसी भी वे में पीछे नहीं रहना चाहिए, alright. दैट्स वाई हर एक बच्चे को पूरा हक है एजुकेशन लेने का, एंड इसी चीज़ को हमने दिमाग में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड दीज वीडियो लेक्चर्स फॉर यू ऑल, सो दैट आप सभी फ्री में एजुकेशन ले सके एंड आप फाइट कर सके स्कूल एग्जामिनेशन से भी, साथ ही साथ आप ओलंपियाड लेवल का एजुकेशन भी ऑब्टेन कर सके, ऑलराइट, दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस
all the things. So just take out your copies, take out your books, let's start the lecture. All right, आज हम लोग प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे. All right, हमने अभी तक फोर्स के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है. Now we'll be talking about pressure and just take out your copies and books. All right, and what you have to do is you have to promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be making proper notes and the third thing, you will be revising on the daily basis. आप रोज़ 15 minutes a day revise करेंगे because revision is the key. Alright, अगर आपने revision किया तो फिर definite सी बात है कि आपको बहुत help मिलेगी आपके final examinations में. Alright, now let's start the lecture. What I want to ask you from all of you, what I want to ask is, मैं आपको अगर एक काम करने को बोलूँ, alright, और देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में. सो द थिंग इज़, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या करो, जो एक लेट्स से एक लकड़ी का यू कैन से एक कुछ भी लकड़ी का एक यू कैन से बोर्ड है, ऑलराइट, एंड आपको उसमें जो है नेल को उसके अंदर जो है उसको लगाना है, ठीक है. इफ़ यू वांट टू पुश दैट नेल इनसाइड दी बोर्ड, ऑलराइट, वुडन बोर्ड के अंदर आपको नेल जो है वो लगाना है. एंड द थिंग इज़, आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी. दैट यू शुड डेफिनेटली डू दैट, ठीक है, यू शुड डेफिनेटली ऑलराइट डू दैट लाइक दिस. दिस इज़ दी वुडन प्लैंक, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको नेल जो है वो इसमें लगाना है. बट कंडीशन ये है कि यू शुड बी डूइंग दैट विद इट्स हेड. ऑलराइट, यू शुड बी डूइंग दैट विद इट्स हेड. अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो नेल है वो इसके अंदर जा पाएगी? क्या लगता है कि ऐसा जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? आपको खुद से सोचना है. इज़ इट पॉसिबल कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर एक हल्के से फोर्स से ही जो है ये अंदर चली जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? एंड आई होप सभी का आंसर नो होगा, बिकॉज दिस वुड बी वेरी मच हार्ड वर्क टू डू, ठीक है. कोई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हुआ ना, तब तो वो डेफिनेट सी बात है इसको कर सकता है. ऑलराइट, सो नो, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल in this activity. Alright, now let me tell you again कि भाई अब की बार आपको क्या करना है, पॉइंटेड एंड से अब जो है इसको अंदर जो है पुश करना है, ठीक है. तो आप हैमर की हेल्प से बिल्कुल कर सकते हो. आप हल्का सा भी हैमर मारोगे ना, ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा भी हैमर मारोगे, ये जो है अंदर चली जाएगी, राइट, ये वुडन ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी. नाउ द थिंग इज कि अब यहाँ पे जो हमने सीखा वो क्या है. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग वी लर्न टुडे इज दैट कि आप इस तरीके से ईजिली आप ऐसे वुडन प्लैंक के अंदर जो नेल है उसको फिट कर सकते हो. ऐसा आप जनरली डिस्प्ले बोर्ड के लिए भी कर सकते हो. स्कूल्स में डिस्प्ले बोर्ड्स जो होते हैं उनकी पेन्स होती हैं, थंब पेन्स होती हैं, राइट. ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रेस दैट थंब पेन यूजिंग योर थंब एंड दैट इट, ऑलराइट, वो अपने आप जो है फिक्स हो जाती है. सो व्हाट कैन बी द रीज़न कि आप इस तरीके से सक्सीड हो सकते हो ईजिली. बट अगर हम उधर से इस एंड से अगर हम इसे वुडन प्लैंक में जो है लगाने की कोशिश करें तो आप सक्सीड नहीं होंगे. सो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस, कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम इस पोजीशन में तो थोड़े से ही फोर्स से ये अंदर चली जाती है, बट अगर हम इसे पलट दें, ठीक है, अगर हम इसे ऑपोजिट ऑर्डर में रख दें तो फिर बहुत सारा फोर्स लगाने पर भी नहीं होता है. सो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस. अब देखो, यहाँ तो हमें ये बात पता चली, थोड़ा बहुत हमारे ऑब्जर्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट, ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट, क्योंकि अगर पॉइंट होगा तो बहुत इजीली चला जाएगी, राइट. सो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई यहाँ पर द रीज़न कि ये पोजीशन कम फोर्स में भी इस आयरन नेल को पुश कर सकता है इनसाइड द वुडन प्लैंक. सो ये जो पोजीशन हुआ, ये क्या पोजीशन हुआ कि तब पॉसिबल हुआ जब ये पॉइंटेड एंड हमने रखा, राइट. तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 1. नाउ लेट मी टेल यू अगेन नेक्स्ट थिंग कि जैसे हम लोग जो है सब्जी काटते हैं, राइट, मतलब हम तो नहीं काटते बट येस मॉम्स डू. सो व्हाट द थिंग इज कि अगर हम, ठीक है, लेट्स से फ्रूट्स को हम कट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं. जो एक नाइफ होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बहुत ही शार्प होता है और राइट, एक बहुत ब्लंट होता है.
सो अगर हम ब्लंट वाले साइड से अगर फ्रूट्स को काटने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? ना तो परफेक्ट शेप मिलेगी, और राइट आई डोंट नो वो फ्रूट बचेगा भी कि नहीं, बिकॉज इट विल गॉट क्रश्ड अप, राइट? सो ये बहुत ही यू कैन से एक बैड चॉइस होगा अगर हम ब्लंट साइड से फ्रूट्स को कट करने का कोशिश करेंगे। बट इफ वी चूज दी यू कैन से दी शार्प साइड, तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। कैसे? एक तो हमें परफेक्ट शेप मिलेगी जो भी हम चाहते हैं, ऊपर से बहुत ही ईजीली जो है हमारे एफर्ट्स हमको कम लगाने पड़ेंगे और बहुत ही ईजीली जो ये वेजिटेबल्स हैं वो कट हो सकती हैं, राइट? बट द थिंग इज अगेन वही बात यहाँ पर है कि व्हाट कैन बी द रीज़न कि जब हम ब्लंट से कट करते हैं तो सब काम बिगड़ जाता है, और हम शार्प एंड से अगर कट करेंगे तो बहुत ईजी रह जाएगा। सो इसमें भी यही चीज़ है कि जब पॉइंटेड एंड था, ऑलराइट, जब पॉइंटेड एंड था, जो यू कैन से द शार्प साइड थी, तो वहाँ पर तो इजीली हो गया हमारा काम, हमें एफर्ट्स भी कम लगाने पड़े। लेकिन जो ब्लंट साइड था उसमें हमारे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगे और हमारा काम भी उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से हम चाहते थे। तो यहाँ पे भी हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि अगर शार्प चीज़ होती है तो it would be easy, all right? So we can say sharp things is easy, obviously cutting with a sharp knife is easy and it is effortless, बहुत ही कम effort लगाने पर भी हमारा काम हो जाता है, right? So we can say that what is the conclusion behind it here? So conclusion can be like, आप लोग जिस भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और जिस भी चीज़ में हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जब हमने नेल में जो है एफर्ट्स को देखने की कोशिश की, जब हमने नाइफ में एफर्ट्स को देखने की कोशिश की, सो व्हाट कैन बी द रीज़न? द रीज़न इज़ कि जिस भी एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो बहुत कम है, और राइट आप देख सकते हैं जब हम शार्प नाइफ की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसका जो एरिया, और राइट उसका जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है उस फ्रूट के वो बहुत ही कम है, एंड दैट्स व्हाई इजीली कट हो जाती है, ठीक है? जब इसी तरीके से हमने नेल की कॉन्टेक्स्ट में भी देखा कि जब नेल का पॉइंटेड एंड जब हमने वुडन प्लैंक के ऊपर रखा तो बहुत ही कम एफर्ट में वो अंदर चले गए। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो एरिया था इन कॉन्टैक्ट विद द वुडन प्लैंक वो बहुत कम था, सो इट इज़ मच ईजियर। सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर एरिया कम होता है तो हमारे काम बहुत एफर्टलेस हो जाते हैं, राइट? सो वी कैन डेफिनेटली से दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्कूल बैग्स। आपने ऑब्जर्व किया आपका स्कूल बैग, अभी देखो जो स्कूल बैग्स है ना तुम्हारे, अभी तुम उनको देखो, उनका जो स्टेप है वो कैसा है, उसका स्टेप क्या वाइड है, मतलब बहुत ही बड़ा है। यू कैन सी दिस स्टेप, ये जो स्टेप होता है दिस हैज़ टू बी अ बिग स्टेप, ठीक है? ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर वो ज़्यादा बड़ा होता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट? तो दैट मीन्स अगर आपका बैग के जो शोल्डर्स जो जहाँ पर आप उसको जो है टाई करते हैं, और यू कैन से हैंग जहाँ पर होता है आपके शोल्डर्स पे, सो द रीज़न इज़ कि अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा तो आपको बुक्स का जो वेट है वो कम फील होगा, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होगा, आपका अगर बुक जो पूरा वेट है वो अगर आपको कम फील होगा तो दैट मीन्स आप इजीली कैरी कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास आपका जो शोल्डर्स हैं उनको कोई पेन नहीं होगा, राइट? आप इजीली अपनी एफर्टलेसली अपनी चीज़ों को ले जा पाएंगे, ठीक है? सो व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस सिचुएशन, या फिर हम इससे क्या सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा बैग में जितना भी वेट है वो सारा का सारा बैलेंस आउट हो रहा है आपके कंधों पे, राइट? आपके शोल्डर्स पे, क्योंकि आप शोल्डर्स पे जो है बैग को हंग करते हो, राइट? तो दैट मीन्स कि जो भी आपके शोल्डर्स पे फोर्स लगता है ड्यू टू द वेट ऑफ योर बैग, जितना ज़्यादा आप उसमें बुक्स भरोगे वो उतना हैवी हो जाएगा। तो वो जो हैवीनेस है वो आपको कम फील होगी इफ़ यू हैव ब्रॉड यू कैन से ब्रॉड स्ट्रिप्स, ठीक है? इफ़ यू हैव बैग विद द ब्रॉडर स्ट्रिप्स यू विल फील लेस इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन योर शोल्डर्स। तब क्या होगा, आपके शोल्डर्स पे जो है वो आपको बहुत ही कम इफेक्ट फील होगा और बिल्कुल एफर्टलेसली आप अपने बैग को कैरी कर पाओगे, ठीक है? कोई थकान भी नहीं होगी और आप बिल्कुल जो है अपने आप को एनर्जेटिक भी फील कर सकते हो, राइट? इफ़ यू आर एनर्जेटिक, ठीक है? इफ़ यू हैव अ बैग विद नैरो स्ट्रिप्स यू विल फील ग्रेट इफेक्ट, alright, of force on your shoulders and soon you will get tired। तो that means वहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी आपके पास नैरो जो होते हैं, ठीक है, अगर आपके बैग में नैरो स्ट्रिप्स हुआ तो उसमें क्या होगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग कि भाई यहाँ पर जैसे नैरो स्ट्रिप्स हुआ तो सारा का सारा जो वेट है आपको यहाँ फील होगा, आपके कंधों पे रेडनेस हो जाएगा, ऑलराइट, आपको पेन होने लग जाएगा एंड यू विल बिकम सून टायर्ड बिकॉज ऑफ योर एनर्जी यू वांट टू यू यूज टू कैरी दैट बैग।
So make sure what you learn today is that make sure that you use a bag with the broader strips. ठीक है, अपने बैग को खुद चूज करो and say that कि उसका जो strips है that should be much broader. All right. So what is the conclusion? Always choose a bag with the broader strips so that the effect of force is much less on your shoulders. ठीक है, तो इससे आपके लिए भी easy रहेगा. Now let's talk about कि मैं force और area के बारे में ही क्यों बात कर रही हूँ, the broader, the narrower things के बारे में क्यों बात कर रही हूँ. So let me tell you one thing again कि देखो ये है हमारा shoe, right? तो जब कभी भी ऐसा होता है ना कि लेट्स से तुम कभी भी किसी अगर मडी लैंड पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर यू कैन से द सॉफ्ट लैंड पे अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आपका शू अगर ब्रॉड है तो आप वॉक कर पाते हो, ठीक है, यू कैन से यू कैन ईजी टू वॉक एज कंपैरिजन. लेकिन अगर आपका जो शू है बहुत छोटा है और यू कैन से कि वो ब्रॉड नहीं है, वो नैरो है, तो क्या होगा कि आप उसमें जो है आपका पाँव अंदर चला जाएगा. ऑलराइट, तो आप क्या हो जाएगा, पूरा जो है चल नहीं पाएंगे सॉफ्ट लैंड के ऊपर. राइट, सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस. एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन एक और थिंग कि भाई ये जो ट्रैक्टर्स आपने ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनका जो वो होता है टायर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. राइट, दे हैव अ वेरी मच ब्रॉड थिंग, है ना, ये देखो कितना ज़्यादा मोटे होते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. देखो इन सभी में क्यों, बिकॉज दे आर यूज टू ऑपरेट ऑन सॉफ्ट लैंड, बिकॉज जो खेत की मिट्टी होती है. ऑलराइट, सो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पानी देते हैं. ऑलराइट, तो इसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से सॉफ्ट होती है. राइट, तो सॉफ्ट होने की वजह से इस पे क्या इफेक्ट होता है, अगर वहाँ पे लेट्स से अगर आप कार के जैसे थोड़े नैरो टायर्स अगर वहाँ पर अगर इसको लगा दिए जाते हैं, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि इतना ज़्यादा ब्रॉड ये क्यों होता है. सो वी कैन से भाई कभी भी वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट कि इन सभी चीज़ों में हमने जो भी पढ़ा वहाँ पर एरिया मैटर कर रहा है. राइट, एरिया मैटर कर रहा है. एंड द थिंग इज़ कि ब्रॉडर नैरो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखा. सो व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस कि हम क्यों बार बार फोर्स और एरिया के बारे में बातें कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज देयर इज अ क्वांटिटी नोन एज द प्रेशर. प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पर क्या हो रहा होता है, फोर्स अप्लाई हो रहा होता है किसी भी एक एरिया पे. If you want more pressure, so you should decrease the area and you should increase the force. ठीक है, अगर आपको चाहिए किसी जगह पर प्रेशर कम हो, जैसे हमने ट्रैक्टर्स की बात की. राइट, तो ट्रैक्टर्स के केस में क्या हो रहा है, ब्रॉडर अगर टायर है तो क्या होगा, सॉफ्ट लैंड में वो जो है नीचे सिंक नहीं होंगे. ठीक है, वो मूव कर पाएंगे इजीली. लेकिन अगर नैरो टायर होता तो पूरे के पूरे ट्रैक्टर का वेट किस पे होता, टायर्स पे होता है. बिल्कुल सही बात है. तो दैट मीन्स फोर्स तो ऊपर से ज़्यादा लग रहा है. एरिया, मिट्टी के साथ कांटेक्ट में कितना एरिया होगा, अगर नैरो टायर होता तो कम एरिया होता. तो दैट्स हाउ क्या होता, सारा का सारा जो फोर्स है ना वो सब लगता और जो है जो टायर है वो उस मिट्टी के अंदर सॉफ्ट लैंड के अंदर सिंक हो जाता. ठीक है, और स्टक हो सकता था. राइट, दैट्स वाई जो मड यू कैन से मडी एरियाज होते हैं, सॉफ्ट लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पर जो भी व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं उनके टायर्स बहुत ही ब्रॉड होते हैं. ऑलराइट, सो दैट क्या हो, ताकि उनका जो वेट है जो कि वो टायर्स हैंडल कर रहे हैं उन टायर्स पे कम जो है वेट लगे. एंड क्योंकि एरिया इन कांटेक्ट ज़्यादा है तो वो कम प्रेशर देंगे और वो सिंक नहीं होंगे. ठीक है, सिमिलर थिंग हम लोगों ने जो है नाइफ के साथ देखी. एरिया इन कांटेक्ट विद द फ्रूट इज़ वेरी मच लेस, सो प्रेशर वहाँ पर क्या है, ज़्यादा हो गया और वो इजीली कट गए. इसी तरह नेल के साथ भी था, एरिया इन कांटेक्ट विद द वुडन बोर्ड वाज वेरी मच लेस, तभी तो इजीली जो है हमने एक बार में ही प्रेशर जब फोर्स अप्लाई किया तो इट बिकम्स प्रेशर, और ग्रेट प्रेशर से हमारा काम इजीली एफर्टलेसली हो गया. ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी विच इज द प्रेशर. ऑलराइट, सो वी कैन से द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, तो कभी भी आप देखेंगे कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगता है मीन्स 90 डिग्री बन रहा होता है तब. ठीक है, एरिया के साथ 90 डिग्री अगर बनता है तो देन एट दैट मोमेंट वी कैन से कि भाई वहाँ पर प्रेशर है. और व्हेन एवर फोर्स किसी एरिया के ऊपर अगर लगता है देन वी से देयर इज प्रेशर. ऑलराइट, एंड इट इज लाइक दिस. देखो ये फोर्स है. ऑलराइट, दिस इज द फोर्स एंड व्हाट इज द एरिया.
एरिया होगा जो इस ब्लू वाले सरफेस के इन कांटेक्ट में है, क्योंकि ये एक यू कैन से स्क्वायर का शेप होगा जो इस कांटेक्ट में होगा, राइट। सो दैट वुड बी दिस एरिया, ठीक है। पीछे वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दैट, ऑलराइट। राइट द फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू force upon area, all right, so you can definitely see यहाँ पर when we talk about let's say when I'm standing, right, तो जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वेट कहाँ पर बैलेंस होता है, पूरा का पूरा वेट जो है हमारे फीट पर जो है बैलेंस हो रहा होता है, बिकॉज इन कांटेक्ट में कौन है, फीट, राइट। तो हमारे फीट का जो नीचे का एरिया है जो कि धरती के साथ यानी सरफेस के साथ यू कैन से फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, दैट इज द एरिया इन कांटेक्ट। और फोर्स कौन लग रहा है, मेरा पूरा का पूरा वेट, ऑलराइट, दैट वुड बी द फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया बिकॉज इट इज मेकिंग 90 डिग्री। तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है, इन कांटेक्ट एरिया कितना है, ऑलराइट, और उसके ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों को मिलाकर व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दैट फोर्स अपॉन एरिया विल गिव यू द प्रेशर, ठीक है। ये जो प्रेशर होगा ये हमेशा तब अच्छे से काम करेगा जब एरिया कम होगा और फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, फटाफट से इसको नोट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट थिंग कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। क्या हमें फोर्स की एसआई यूनिट पता है? यस, एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन, राइट। फिर हमें क्या एरिया का एसआई यूनिट पता है? यस, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो व्हेनेवर वी डिवाइड न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर वी गॉट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है, पास्कल होता है। देखो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और इसको हम शो करते हैं किससे? पा से, कैपिटल पी स्मॉल ए। तो जो पा होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। It is the pressure exerted by a force of 1 Newton acting normally, normal का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, on an area of 1 meter square. So we get 1 Pascal equals to 1 Newton divided by 1 meter square. तो अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं so we always get what? प्रेशर, एंड उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए, नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं, डिपेंडेंसी देखते हैं कि भाई यू कैन से कि प्रेशर किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेट सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब प्रेशर डिपेंड करेगा फोर्स पे और प्रेशर डिपेंड करेगा एरिया पर, ठीक है। किस तरीके से करता है? लेट मी टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। नंबर वन है वो है क्या? फोर्स अप्लाइड। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी यू इंक्रीज द फोर्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वेन एवर यू डिक्रीज द फोर्स प्रेशर भी डिक्रीज होगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं दैट प्रेशर, ठीक है, इफ प्रेशर इंक्रीजेज, अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है देन फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर फोर्स इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और वी कैन से दैट कि इफ फोर्स डिक्रीजेस देन प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑलराइट। तो हम ये कहेंगे कि भाई जब भी
प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो मतलब फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है और वी कैन से अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से जब कभी भी फोर्स इंक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, फोर्स अगर डिक्रीज होता है तो भी प्रेशर डिक्रीज होता है, तो दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। सो वी कैन से लाइक कि अगर फोर्स में कुछ चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो प्रेशर में भी सेम वैसा ही चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया, so we can say pressure is inversely proportional to the area on which force is applied. So we can say that कि जब कभी भी अगर we can say कि भाई एरिया है, अगर हमने उसको कम कर दिया है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है एक दूसरे को, ठीक है। तो जब कभी भी हम अपोजिट की बात करते हैं तो वी कैन से कि अगर एरिया जो है, अगर एरिया इंक्रीज होता है, इफ एरिया इंक्रीजेस then pressure decreases, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब और वी कैन से अगर जो एरिया है, इफ एरिया डिक्रीजेस, ऑलराइट, देन प्रेशर इंक्रीजेस, अपोजिट। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट, हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के साथ साथ होता है, ठीक है। फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन एरिया के साथ वो ऑपोजिट बिहेव करता है। अगर एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे कि हमने जब किया था नेल के साथ, तो हमने एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो नेल अंदर नहीं गई। लेकिन जब हमने एरिया डिक्रीज किया, यानी कि जब हमने पॉइंटेड एंड जो है उस बॉडी का, उस नेल का स्टक किया, ठीक है, तब क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया और जिसकी वजह से नेल जल्दी से अंदर चली गई विदाउट एफर्ट्स, राइट, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। सो वी कैन से दैट इन दोनों की जो डिपेंडेंसी होती है उनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं दैट यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि देयर कैन बी हाई प्रेशर, देयर कैन बी लो प्रेशर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दी फोर्स एंड एरिया। आप इस बॉडी से भी देख सकते हो, देखो एरिया ज़्यादा बना दिया हमने तो कम प्रेशर हो गया है ना। अगर लार्ज एरिया, यू कैन सी दैट दिस इज द कॉन्टैक्ट में जो एरिया है ये होता है वो एरिया, ठीक है। सो दिस इज द एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो देखेंगे लो प्रेशर है, राइट। जब हम यहाँ पे बात करें तो देखो एरिया इन कॉन्टैक्ट कितना छोटा है, स्मॉल एरिया है ना, तो हाई प्रेशर हो गया। सो इट इज ऑलवेज अपोजिट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फोर्स की, सो व्हेन वी इंक्रीज द फोर्स प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन वी डिक्रीज द फोर्स प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो वो साथ साथ रहते हैं लेकिन एरिया ऑपोजिट रहता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट, ऑलराइट। तो अब आप इसको फटाफट से नोट कर लो। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, डायरेक्टली आपको प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है, ऑलराइट, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज टू सॉल्व इट। तो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑलराइट, रीड इट। Calculate the pressure on the surface if the force applied is 24 Newton on an area of 24 centimeter square. Make sure कि आप सभी यूनिट्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो एंड देन यू विल डू इट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो आंसर है वो डेफिनेट सी बात है गलत आ सकता है। ऑलराइट, सो ऑल यू नीड टू make yourself sure that you are using the correct units and the SI unit. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट, है ना, मेरे साथ साथ करते चलेंगे सभी बच्चे। देखेंगे व्हाट इज द फोर्स हेयर, फोर्स है 24 न्यूटन। कैसे पता चला मुझे, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूटन लिखा हुआ है उससे मुझे पता चला कि ये क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है, बिकॉज फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि जो फोर्स हमें गिवन है, ठीक है, वो कितना गिवन है, एफ का वैल्यू मुझे कितना गिवन है, 24 न्यूटन, ठीक है, मुझे ये गिवन हो गया है। एंड एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, दैट्स व्हाई आई नो दैट दिस इज एरिया।
ऑलराइट, नाउ टेल मी, मुझे ये बात बोलो कि क्या एरिया एसआई यूनिट में है? क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सीजीएस यूनिट में है, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले वो कन्वर्जन करते हैं। सो लेट्स डू दी कन्वर्जन फर्स्ट। ठीक है, तो हमको ये बात पता है, क्या पता है हम लोगों को? हमको ये बात पता है, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमको ये बात पहले से पता है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 1 सेंटीमीटर कैसे मिलेगा? जब मैं 100 को यहाँ से उठाकर डिनोमिनेटर में लेकर चले जाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा 1 सेंटीमीटर का वैल्यू। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज 1/100 मीटर। ठीक है, अब मुझे 1 सेंटीमीटर का पता चल चुका है, तो क्या मैं इसी तरह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे? जैसा हमने जो फर्स्ट चैप्टर्स थे ना, फर्स्ट वाला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, उसमें हमने जैसा कन्वर्जन सीखा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे कैसे मिलेगा, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ 1/100 मीटर। मैंने क्यों लिखा 1/100 मीटर? बिकॉज 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई राइट 1/100 मीटर, और मैं मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से 1/100 मीटर जो है लिख सकती हूँ, बिकॉज देयर आर 2 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 देयर आर 4 zeros, सो वी कैन से दैट 1/1 2 3 4। ठीक है, मीटर स्क्वायर, बिकॉज अगेन मीटर इंटू मीटर वी विल बी गेटिंग मीटर स्क्वायर। तो अब हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सो वी कैन राइट हियर दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोगों ने बना लिया है, कन्वर्ट कर लिया है लाइक दिस। ऑलराइट, तो हम यहाँ देख सकते हैं, अब सब बच्चे यहाँ देखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हम लोगों ने सीखा था फोर्स अपॉन एरिया। नाउ लेट्स डू इट। फोर्स कितना है? 24 न्यूटन। ऑल राइट, हमने 24 न्यूटन लिख दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरिया। एरिया कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? इतना। सो वी कैन राइट 1/10,000, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। सो इट इज 24 इंटू 1/10,000। ठीक है, अब 24 से 24 कैंसिल आउट। ठीक है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर जो है 1 2 3 4, ये सब के सब चले जाएंगे ऊपर। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट 1/10⁻⁻⁴। ऑलराइट, वी कैन राइट दैट। देखो 1 अपॉन में है ना, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1 2 3 4, सो इट इज 10⁻⁻⁴। बिकॉज देखेंगे यहाँ पर 10⁻⁻⁴ क्यों लिखा? बिकॉज ये एक स्टेप ऊपर चले गए, है ना, ये न्यूमरेटर में चले गए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दी माइनस पावर। और ये अभी भी 1 अपॉन के अंदर क्यों है? बिकॉज वी हैव न्यूटन हियर। ठीक है, सो वी हैव यहाँ पर न्यूटन है हमारे पास। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁻⁴ है इसको और ऊपर लेकर जाएंगे 1 स्टेप। अगेन हम इसको एक न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, सो अगेन जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा एंड वील बी गेटिंग 10⁻+4 पास्कल। ठीक है, पास्कल क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर न्यूटन और यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी गेट 10⁻⁴ पास्कल। सो दिस इज द आंसर वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू विद द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे देखेंगे ऑल वी नीड टू नो इज टू सी द थिंग्स, कि ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपको जो यूनिट्स गिवन है क्या वो यूनिट्स फोर्स की एसआई यूनिट में है, क्या वो यूनिट्स जो एरिया का यूनिट है क्या वो एसआई यूनिट में है। अगर वो एसआई यूनिट में है देन गो फॉर इट,
ओनली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इट। अगर वो SI यूनिट में नहीं है देन कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट एंड देन कैलकुलेट इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया एंड देन उसके बाद हमने इसे जो है प्रेशर को कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमें मिला पास्कल में, बिकॉज 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो हमें पास्कल में इन्फो देता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट द प्रेशर। अब मैं आपको वापस एक बार प्रेशर बता देती हूँ। प्रेशर का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, जब कभी भी आप प्रेशर को फोर्स को जब आप डिवाइड करेंगे एरिया से, सो यू विल बी गेटिंग प्रेशर। ऑलराइट, ये एग्जाम का प्रेशर नहीं है, ये सिंपली नॉर्मल थिंग्स का प्रेशर है। ठीक है, और ये प्रेशर कब इंक्रीज होता है, व्हेनेवर फोर्स इंक्रीजेस। ऑलराइट, सेकेंड थिंग, व्हेनेवर एरिया डिक्रीजेस, जब एरिया कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और दिस इज द रीजन बिहाइंड द कैमल्स फुट। आपने कभी भी कैमल के फुट देखे हैं, उनके फुट बहुत ही ब्रॉड होते हैं। ठीक है, उनका एरिया बहुत ही वाइड होता है एंड दैट्स बिकॉज दे हैव वाइड फुट, दे कैन वॉक ऑन दी सैंड। इसीलिए तो उनको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, बिकॉज दे कैन वॉक ऑन दी सैंड। सो व्हाट इज द फीचर जिसकी वजह से वो सैंड पे भी वॉक कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते, हमारा पाँव तो सिंक हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी मच ब्रॉड फीट। अगर उनका जो फीट है वो ब्रॉड नहीं होता तो वो भी वॉक नहीं कर पाते। ठीक है, सो वी कैन डेफिनेटली से दैट कि उस वक्त क्या होता है जब वो वॉक कर रहे होते हैं, दे गॉट अ वेरी मच वाइड ब्रॉड फीट। ऑलराइट, सो दे कैन वॉक वेरी मच इजीली एज कंपेयर टू अस। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऑल यू नीड टू डू इज टू लुक आउट फॉर दी फोर्स दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर। अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज टू नो द परपेंडिकुलर फोर्स, दैट मीन्स 90 डिग्री। यू ऑलवेज सी लाइक दिस, देयर हैज टू बी लाइक दिस, एरिया एंड 90 डिग्री फोर्स। ठीक है, कभी भी फोर्स को अप्लाई करेंगे तो दैट हैज टू बी द 90 डिग्री। ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग, परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड द सेकेंड थिंग एरिया कम होना चाहिए ताकि प्रेशर ज़्यादा हो सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेशर यू शुड नो। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आपको होमवर्क करना है, आपको प्रेशर के और फोर्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश करने हैं। एक्सरसाइज 1 के first 15 question you have to do in the homework and submit them on the Google Classrooms, right? And the next thing is you should revise all the things, right? You should definitely revise it. आपको क्या करना है, डेली 15 मिनट्स का रिविजन करना है। ऑलराइट, और उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जो भी आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो। बाई वीकली क्विजेस रेगुलर देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स रेगुलर देना है, छोड़ना नहीं है। राइट, एंड देन यू कैन डेफिनेटली आप लोग अपना चेक कर सकते हैं दैट हाउ मच यू प्रोग्रेस्ड। ऑलराइट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और आपको कोई क्वेश्चन अगर होता है, यू कैन डेफिनेटली राइट इन दी कमेंट सेक्शन, आप लिखो एंड देन वील बी सॉल्विंग यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और जितना हो सके सभी को स्प्रेड करो, सो दैट क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएंगे, आप भी पढ़ पाएंगे और आप सभी अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।